ہمارا موضوع ہے یہ موضوع بڑا ہی تکلیف دہ مانو کرے کہ اس میں ایک حصہ ہے جو ہمارا اپنا ہم عوام پبلک اس میں بہت زیادہ انوالو نظر آ رہی ہے. تو اب چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا چاہیے، تو بات ہوگا ہم آپس میں ہی چیزوں کو خراب کرنے میں مصروف عمل ہوتے ہیں، لیکن اس پر شاید ہماری اتنی توجہ نہیں ہوتی. اگر ہم اپنے موضوع کو حادثات کی طرف لے کے جاتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ کچرا پھینکتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں ہم، اور یہ کچرا پھینکنا اور اس سے جو آلودگی پیدا ہوتی ہے، اس سے جو دھوئیں نکلتے ہیں، اس سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں، یہ اپنی جگہ پر اس سے جو اموات ہوتی ہیں، جی ہاں اس سے اموات ہوتی ہے. ایک پھینکنے والا تھیلی تو پھینک دیتا ہے، ایک پھینکنے والا اپنا دسترخوان بھی پھینک دیتا ہے باہر سڑک پر، ایک پھینکنے والا چلتے چلتے گاڑی میں سے بھی کچھ تھرو کر کے چلا جاتا ہے، لیکن شاید وہ جانتا نہیں ہے کہ اس قدم سے کتنی پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ اخباری رپورٹس جو ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں، اس کی انشاءاللہ حساسیت مزید آپ کے سامنے آ جائے گی. کہ یہ واقعہ ٹھٹھے کا ہے. کراچی میں لگنے والی کچرے میں لگنے والی ٹھٹھے کا واقعہ، کچرے میں لگنے والی آگ کی لپیٹ میں آ کر 6 گھر خاک کا ڈھیر ہو گئے. کچرے میں لگنے والی آگ، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یعنی گھر کے اندر آگ لگتی ہے، چولہے میں آگ لگتی ہے، گھر میں ہیٹر اس میں آگ لگ جاتی ہے، یا کوئی اور گھر کے اندر ایشو ہو جاتا ہے، شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، گھر کے اندر آگ لگ جاتی ہے. لیکن باہر کچرے میں آگ لگی، اس کچرے میں آگ لگنے کی وجہ سے 6 گھر جل کر خاک ہو گئے. آگے جاتے ہیں. جہانگیر آباد کراچی میں کچرے میں آگ سے مکان اور بھینسوں کا بارہ جل گیا. ایک اور واقعہ کراچی کا، یہ قبرستان میں کچرے کی آگ سے قبروں کی بے حرمتی، یہ ایک الگ خبر آئی، یہ اپنی تصاویر کے ساتھ ہے. اچھا، لانڈی کے نالے میں گرنے والا بچہ دوسرے روز بھی نہ نکالا جا سکا. یعنی کہ اب نالوں میں بھی ہم لوگ کچرا پھینکتے ہیں. انشاءاللہ آپ اس کی تفصیل آج دیکھیں گے. تو اس طرح یہ نالوں میں بچے گر جانا. کراچی میں 5 سال کی بچی نالے میں ڈوب کر انتقال کر گئی. اچھا، ایک فیملی کے بارے میں ہے کہ وہ نالے میں اس کی موٹر سائیکل چلی گئی. تو اگر یہ واقعہ دیکھیں تو برساتی نالے میں ڈوب کر باپ بیٹا سمیت 3 افراد جہاں بحق ہو گئے. اسی طرح کچرے میں لگی آگ نے 3 بچوں کی جان وہ لے گیا. تو اب اگر یہ خبریں ہی بیان کرتے چلا جاؤں کہ اس کچرے میں لگی آگ سے کیا ہوا، کچرے کی وجہ سے کیا ہوا. اچھا، جو نالے ہمارے بھر جاتے ہیں اس میں بھی کچروں کا بھی ایک بڑا حصہ ہوتا ہے. دیکھیں، میری اس پوری گفتگو میں آپ کا ذہن یہ شاید جائے گا کہ یار صاف کرنے والے کہاں ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہر کوئی اپنا کام صحیح کر رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، مگر مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہم اپنا معاملہ بھی درست کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پرسنٹیج ہوگی جو کہ سیٹ ہو جائے گی. یہ آپ پروگرام دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا. تو کسی اور پر غور کرنے کے بجائے کہ یہ تو فلاں کا کام تھا کچرا اٹھاتے، یہ فلاں کام تھا، بالکل میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر کوئی یا ہر ڈپارٹمنٹ یا ڈپارٹمنٹ کا ہر آدمی اپنا کام درست طریقے سے کر رہا ہے. صحیح کرنے والے لوگ بھی ڈیفینیٹلی مل ہی جاتے، لیکن غفلت کرنے والوں کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ ایک مطلب بات کر پروگرام دیکھتے دیکھتے آپ کا دماغ کہیں اور نہ جائے. کائنڈلی ریکویسٹ یہ ہے آج میری تمام دیکھنے سننے والوں سے کہ پلیز اپنے معاملے کو غور کریں. میں آپ کو ایک پبلک ویوز بتاتا ہوں. عوامی جو ایک لوگ ہوتے ہیں، عام آدمی، آپ میں ہم میں سے ہی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں وہ سنتے ہیں، اور پھر آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کالز کیا کہتی ہیں، آپ کے جذبات کیا کہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. آئیے. یہاں کے لوگ پھینکتے تھے اور کون پھینکتا تھا؟ یہ ہم لوگوں کی ہی غفلت تھی. یہاں پر رکھ کے چلے جاتے تھے، پھینک کے چلے جاتے تھے، کوئی اٹھانے والا ہوتا نہیں تھا، پڑا رہتا تھا. پھر صبح آ کے وہ کچرا اٹھا کے ہم نے دوبارہ وہیں پھینک دیا کرتے تھے. بھائی یہ کچرا پھینکنے کے لیے تو پھینکتا کون تھا یہ تو خیر کہنا مشکل ہے، اس لیے کہ کچرا جو بھی لوگ پھینکتے ہیں وہ اپنے راتوں کو پھینک دیتے ہیں، یا کوئی ہم لوگ دیکھتے تو ہے نہیں. جہاں لوگوں کو موقع ملتا ہے وہ کچرا وہاں پر
अपना फेंक देते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। लोग दुकानें 10 बजे 11 बजे खुलती हैं, वो आ रहा है, वो अपना कचरा उठा के जहाँ उसको सहूलत मिल रही है वो वहाँ फेंक देता है। वो उसको लोगों के अंदर शऊर है, मगर बात ये है कि अगर किसी को कोई जगह नहीं मिलेगी तो क्या करेगा वो? जहाँ उसको जगह मिलेगी वो वहाँ पर फेंक देगा उसको कचरे को। भाई देखें, डस्टबिन मेरी दुकान के आगे रखी हुई है, मेरे दुकान के आगे कचरा मैं डस्टबिन के अंदर डालता हूँ, मैं सबकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। कचरा वाले असल में हम लोग हैं, घर से या कहीं से भी कचरा करें तो कचरा हमारा होता है, वो सफाई वाले लोग होते हैं। दुकानदार और हमारे सारे इलाके वालों को भी शऊर आना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ चाहे फेंक दें, इधर फेंक दें उधर फेंक दें, जो आज से 2 साल 2.5 साल 5 साल हम देखते हुए चले आ रहे हैं। असल गफलत शुरू यहीं से होती है, कौन से, चाहे उसमें दुकानदार हो, ठीक है ना, या हमारे वो रहायशी लोग हों। कचरा कुंडी के पहली बात तो ये कि यहाँ आग लग गई थी, बच्चे जो स्कूल बराबर में स्कूल है ना, सौदाबाद नंबर 1 स्कूल है, बराबर में बच्चियों का स्कूल है, वो बेहोश हो गए थे 4 5 6 बच्चे। और वहाँ से फिर यही वजह थी कि जाहिर बात है जानी नुकसान, माली नुकसान, हर चीज़ का नुकसान है। गफलत असल में दरअसल हम लोगों की होती है, हम लोग कचरे कुंडी वाले को नहीं देते। 100-200 बचाने के लिए हम लोग कहीं पे भी कचरा फेंक देते हैं। बारिश होती है तो कचरा यही बाहर आता है, तो ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी होती है, तो हम लोग फिर किसी और को ब्लेम करते हैं। ये गलतियाँ होती है हमारी है। सबसे पहले नमाजियों के लिए बहुत तंग होता है, नाले बंद हो जाते हैं, गटर बंद हो जाते हैं प्लास्टिक की चीज़ें वहाँ फंसने से। कचरा उठाने वाले को कचरा देना चाहिए, रोडों पे कचरा बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। यहाँ पे गंदगी है, कचरा है और आग का धुआं है, धुएं से बच्चे भी बीमार होते हैं। हम बोलते हैं कि हम किसको बोलें जाके, और आगे हमारा कोई बच्चे हैं या हमारा कोई बुजुर्ग है, एक तो मस्जिद है, किसी का बच्चा है जाए वो मस्जिद का रुख भी नहीं पकड़ सकता है, बदबू इतनी फैली हुई, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ के लोग ही फेंक रहे और ये इन लोगों को समझा थक गए, ये लोग हमारी समझ से ही बाहर हैं। ये जो कचरा बचरा है, ये लोगों की गफलत है, हम लोगों की भी थोड़ी है, और ये बच्चों की भी थोड़ी परेशानी। यहाँ के बच्चों को बोलते हैं, यहाँ के बड़े लोगों को बोलते हैं, कोई भी हमारी नहीं सुनता है। यहाँ पे बदबू की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये कचरा तो रोजाना तकरीबन उठता है, मगर यहाँ पर ये जो कचरा ऊपर से फेंका जा रहा है ना, जो लोग गफलत करते हैं, ये समझ लो कि ज्यादातर ये लोगों की गलतियां हैं। हद से ज्यादा कचरा इन गलियों में ऊपर से नीचे फेंका जाता है, यहाँ तक कि ऐसी थैलियां फेंकी जाती है जो नीचे आके फटती हैं और जो लोगों को मुतासिर करती हैं, छींटे भी उड़ती हैं। हम खुद तंग हैं, बाहर खड़े नहीं हो सकते। कचरे की वजह से नमाजी भी तंग होते हैं, बास्टिंग या गटर भी बंद होते हैं, ऐसी खाने पीने की दस्तरखान भी जड़ जाते हैं यहाँ तो लोगों के, जिससे रोजी भी, चावल भी देखते हैं हम, रोटी के टुकड़े भी देखते हैं। कचरा तो बेतहाशा घरों से फेंका जा रहा है भाई। सारी आवाम की गफलत है। आवाम की गफलत है। आप भी आवाम हैं, मैं भी आवाम हूँ। ये शायद हमें ही समझा रहे थे कि यार आप क्या कर रहे हैं, हम तो आपके महल्ले वाले हैं, आपके इलाके वाले हैं, आपके बिल्डिंग के नीचे हमने दुकान ली हुई है, आपके महल्ले के अंदर मस्जिद है, मस्जिद में लोग नमाज के लिए जाते हैं। और देखिए प्यारे इस्लाम भाइयों, अगर हम सफाई की बात करें, सुथराई की बात करें, इस्लाम और दीन की तालीमात बड़ी वाज़ेह हैं। सफाई निस्फ ईमान है, ये आप बचपन से ही सुनते चले। सुन्नत तंजीफ़, ये आप भी सुनी होगी दावत इस्लामी के दीनी माहौल में। अपने लिबास को, अपने जिस्म को पाक साफ़ रखना, साफ़ सुथरा रखना, अपने बदन को साफ़ सुथरा रखना, अपने जगह को साफ़ सुथरा रखना, हदीस में सहन को साफ़ सुथरा रखना। तो ये सफाई और सुथराई जो है, ये तो हमारे दीन की बड़ी बुनियादी तालीमात में से है। इस्लाम और दीन हमें सफाई सुथराई की तरफ दावत देता है। लेकिन अब ये कि जहाँ हमने दीन और इस्लाम की बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज किया हुआ है, इसमें ही ये सफाई सुथराई भी है। अच्छा, इसके साथ साथ जो हम ये जो कचरा फेंक रहे हैं, जैसे अभी आप तासुरात देख रहे थे, यार ऊपर से थैली फेंकते बिल्कुल हमारे ऊपर इसके छींटे गिरते हैं। अब आप बताइए, अच्छा बाद औक़ात तो बच्चों की जो नजासत की जो थैलियाँ होती हैं, जो डायपर्स वगैरह होते हैं, ये मैं आपको कुछ बातें वो हैं जिनका हम भी मतलब मैं खुद इसका ऐनी शाहिद हूँ कि हमारे यहाँ मिजाज नहीं है लोगों का कि यार किसी की तकलीफ़ हो जाएगी। बाकायदा ये मेरा मुशाहिदा है कि वैगन में बैठा हुआ आदमी पान की पिचकारी खिड़की से थूक रहा है और मोटरसाइकिल पर जाने वाले के ऊपर सारी उसकी पान की पिचकारी गिरी है, इनको एहसास ही कोई नहीं है। आप शायद बिल्डिंग में अगर रहते हो तो आप बिल्डिंग की दीवारें अपनी देख लीजिए, वो थूकों से और पान की पीकों से भरी हुई है। आपकी बिल्डिंग के घर के नीचे, आपके बिल्डिंग के नीचे, आपके मकान के बाहर कचरा पड़ा हुआ है। यानी महल्ले वाले, इलाके वाले ये क्यों ये नहीं समझ रहे होते कि कचरे कूड़ा दान में, डस्टबिन में ही फेंका जाता है। मैंने पाकिस्तान के बाहर जहां सफ़र किया है, उनमें से चंद ममालिक के अहवाल अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं समझने के लिए, तो मैं यहाँ तक इस बात को जानता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक शख्स ने अपनी गाड़ी में बैठकर कोई चीज़ खाई है, चिप्स खाए, बिस्किट खाए, अब उसका जो कवर है, वेब जो इसकी जो पैकिंग होती है,
अब वो पैकिंग को खिड़की खोल कर बाहर नहीं फेंकता, नहीं, बाकायदा ये मेरा मुशाहिदा है कि जैसे सिग्नल है तो पैसेंजर उतरेगा और उतर कर वो डस्टबिन में वो चीज़ डाल देगा। यानी गलियों में डस्टबिन है, माना कि डस्टबिन हमारे शायद हो सकता कम हो, लेकिन ये भी बात आपकी मेरी देखी हुई है अपने इलाकों की, अपने महलों की, अपने शहरों की जहाँ आप और हम रहते हैं। हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि आपके महल्ले में, आपके इलाके में डस्टबिन रखा हुआ है, मगर उस डस्टबिन में कचरा नहीं, कचरा डस्टबिन के बाहर है। यानी इतनी भी हमको तौफीक नहीं मिलती कि हम डस्टबिन जो रखी हुई है, बड़ी बड़ी डस्टबिनें भी रखी हुई है, देखिए जहाँ रखी है, मैं फिलहाल वहाँ की बात कर रहा हूँ। आप यार हमारे यहाँ तो नहीं है, हर घर के बाहर तो डस्टबिन नहीं रखी जाएगी ना, ये तो आप भी समझते हैं। और कचरा उठाने वाले को आप ये भी पाबंद शायद नहीं कर सकते कि आप हर घर के सामने से कचरा उठाते चले जाइए। डेफिनेटली कोई स्पॉट बनेंगे, कूड़ा दान के, कचरा कुंडी के कोई स्पॉट ही बनेंगे ना, तो वो स्पॉट जो बनेंगे या डब्बे रखने के भी स्पॉट बनेंगे, कोई 1-2 किलोमीटर या किसी न किसी फासले पर ही रखे जाएंगे, अगर डस्टबिन रखे भी जाएंगे। ये सब मैं कहता हूँ बात की बात है। सबसे पहले प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी तरबियत है। अच्छा, हमारी तरबियत घर से शुरू होती है। घर से कैसे शुरू होती है? अब हमारे बच्चे ने कोई चीज़ खाई, खाकर हम अपने घर के अंदर उसने फेंकी नहीं फेंकी, ये बताइए। अगर एक तादाद अपना जायज़ा ले तो शायद हमारे घर के अंदर भी डस्टबिन नहीं होता। क्यों? कि हम जब ये हमारा बच्चा जब खाता है ना कोई चीज़, तो हम कहते हैं बेटा कचरा उठाओ, बाहर फेंको, बाहर फेंको। अब उसने लेना है, उसने खिड़की से या गैलरी से बाहर फेंक देना है। वो उसकी तरबियत ये हुई है कि चीज़ें बाहर फेंकनी है। अगर वो घर के अंदर नहीं भी फेंकता, अगर हम घर के अंदर ये कहते हैं कि बेटा डस्टबिन रखा हुआ है घर के अंदर, बेटा उठाए, अच्छा बच्चे से उठवाए कि बेटा ये चीज़ डस्टबिन में डालें, तो उसकी आदत होगी कि ये चीज़ें खाकर जो कचरा वगैरह जो होता है ये यूं नहीं फेंका जाता। अच्छा, डायपर्स होते हैं, बच्चों के नजासत के डायपर्स होते हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, फैमिली समझ रही होंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब वो बाथरूम के अंदर वहीं डायपर्स रख देंगे। डायपर्स डेफिनेटली नजासत वाली एक शे है जिसपे बच्चे की नजासत है, ठीक है, बच्चे ने पोटी की है, बच्चे ने पेशाब किया है, तो उससे डायपर्स आपका ये भर गया, तो आपने बच्चे क्या डायपर्स चेंज किया। अब डायपर्स चेंज करने के बाद डायपर्स को आपने क्या, खुला डायपर्स आपने बाथरूम में रख दिया या खुला डायपर आपने किसी और जगह रख दिया, वो मक्खियाँ आएंगी और तरह तरह के जरासीम पैदा होंगे, अब घर में आएंगी बीमारियाँ। अरे बच्चे के डायपर्स तक नहीं बदलते हमारे यहाँ, कितने तो मतलब घंटों तक बच्चा डायपर्स पहना हुआ होता है, उसने कोई 10 दफ़ा पेशाब कर ली होती है डायपर्स के अंदर। अब वो पेशाब के अंदर कितने जरासीम, अच्छा उससे पोटी की उसमें कितने जरासीम, उससे बच्चे की जेल जितनी बर्बाद होती है कभी अंदाज़ा नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आती कि हम लोग इतनी हुसासियत पैदा क्यों नहीं करते कि अपने ही घर के बाथरूम में, अपने ही घर के अंदर, यानी ये मेरा कहीं जैसे कि अगर डेफिनेटली मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कहीं अगर जाने का इत्तेफाक हुआ भी है और गया भी हूँ तो बाकायदा ये चीज़ें मैंने बाथरूम्स में देखी हैं। अब निकलने के बाद मेज़बान को कहना कि यार ये आपने क्या किया, उसकी डेफिनेटली दिल दुखता है, वो एक उसको अजीब सा लगेगा कि यार ये क्या नज़र आ गया। वो घर वालों पर अपनी क्लास लेगा, यार मेहमान आया और आपने यूँ कर दिया। माइंड होना चाहिए, मेंटलिटी होनी चाहिए, सफाई सुथराई की बात होनी चाहिए, बाथरूम साफ़ सुथरे हों, किचन साफ़ सुथरा हो, कमरे साफ़ सुथरे हों, अपनी चीज़ें साफ़ सुथरी हों। जब प्यारे साहब भाइयों सफाई और सुथराई का जब जहन बनेगा और हमारा अपना सफाई सुथराई का जहन बनेगा, यानी हदीस पाक में है कि जन्नत में साफ़ सुथरे लोग ही दाखिल होंगे, बड़ी वाज़ेह हदीस मौजूद है। तो सफाई सुथराई की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और हम जो ये काम जो कर रहे हैं, और आप में से जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और आप खुदा न खासा इन कामों में मुब्तला हैं, गाड़ी में जा रहे हैं तो बच्चे को समझा दें बेटा भी गाड़ी में रख दो, शॉपर रख लें, शॉपर रख दे। किचन के अंदर मतलब लोग चाय पत्ती है ना, चाय पत्ती उठा कर फेंकते। आपने अभी जो तासुरात देखे, इस तासुरात में आपने देखा होगा कि पीछे जो वो इलेक्ट्रिक की जो तार होती है, ये वायर भी एक अजीब व गरीब हमारे यहाँ निज़ाम बना हुआ है। इधर का तार उधर जा रहा है, उधर का तार इधर जा रहा है, इधर का तार उधर जा रहा है। और ये जो तार है आप ये देख रहे हैं, इनके पीछे वो तार पर भी थैलियाँ लटक रही हैं। एक और भी मैंने तासुरात देखे थे, उस पर भी पीछे जो है ना वो थैलियाँ लटक रही होती थी। हमारे पास एक और भी इस मामले में है, कचरे के ताल्लुक से व्यूज़ हैं।